Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good speaker, good speakers aren't born; they are trained. This is a famous saying by somebody that they are not born, rather they are trained. And the training is very, very important to acquire any skill. Presenting is also a skill and it is developed through experience and training. It is like, if I say that it is like driving a motor car, and if you join a training school, you will be just told about the basics of driving a motor car. Then you have been put on a trainee seat, and at later on you are put on trainer seat, a trainee on the driver seat, and you will start driving a motor car. But as Rome was not built in a day, so same is the case here, that you will not be driving perfectly in the very first day. You will attend the driving school, you will learn the basics, and you will do the practicals. And with the passage of time, you will become a very good driver. But definitely it requires practice. Without practice, you can't acquire this skill. So any skill, if we talk about skills, then acquiring any skill needs practice and experience. Practice means you drive daily, and experience that is acquired with the passage of time. That number of years that you have driven a car, so definitely you will acquire experience. And number of years, that doesn't mean that that in a day how many hours. Maybe that you drove 1 hour a day, but you drove 4 years, 5 years, 10 years. You drove in a hill area. You drove in rush traffic. You drove in a smooth way. So that is an experience. Same is the case here when you are going to learn that how you have to speak in public, how you have to deliver your thoughts, how you have to convey your ideas to public, then you have to do practice. But when we are going to face public, we are having some sort of fear and anxiety. We fear more than death. And for that, we find certain facts like shaky hands, blushing cheeks, memory loss, nausea, and knocking knees. All these things happen with us. If you are going to deliver a presentation in front of the class, even then you can face these things because you have never faced people like this. You never stood in front of public to talk. So you'll be facing these problems. टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, आसाब जब वो साथ छोड़ देंगे. So for all that, in order to control your fear, in order to overcome your anxiety, you need practice. Because in the very first day when you stand in front of public, definitely all these things you will face. But when you will become experienced, so then you'll not face these problems. So these things are normal. These facts are normal. These are the realities of life. But we have to overcome these realities. We have to control these things, and that can be controlled through practice. There are certain causes of anxiety. As I told you that we face anxiety also means that we are having a fear of unknown or loss of control. पता नहीं क्या हो जाएगा सुबह, पता नहीं क्या होगा. Flight or fight mode, no backup plan, no enthusiasm for subject, focus of attention. जिस दिन प्रेजेंटेशन देनी होती है उससे एक दिन पहले परेशानी में बुरा हाल होता है. टेंशन ही टेंशन बनी होती है, पता नहीं सुबह क्या हो जाएगा. और वो डर के खौफ इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन में जाके बैठते हैं तो उस वक्त वो खौफ अपनी हदों को क्रॉस कर जाता है और हम जो है वो सब कुछ जो याद होता है उसको भी भूल जाते हैं. एंड आई एम श्योर
that as I have already shared two links with you, and you must have watched those videos. So before proceeding to the next slides, before talking about its definitions, let me ask you, students, please tell me, have you watched two presentations that I've shared with you? I've shared with CR and Yes, sir. GR, because those two presentations are based on detailed description on presentation skills. And presentation skills has been part of your first semester course outline, and I'm sure that you have already learned it before in the first semester, but in third semester we are going to learn effective presentation we are going to learn the art of effective presentation. So let me have a recap that what is presentation. Basically, it is something set forth to an audience for an attention of the mind, for the attention of the mind. So we set forth, we stand in front of the audience and we talk to them. And effective is what producing a desired result. So effective presentation is something set forth to an audience for the attention of the mind to produce a desired result. If your presentation fails to produce desired results, so definitely that is not an effective presentation. For example, there are two presentations delivered on the same issue, means an organization is introducing its product to the customers and they are delivering a presentation. There are two types of presentations delivered over there. On the basis of first presentation, they didn't get, or they get very less clients, they didn't get very less deals. And on the basis of the other presentations, they got too much deals, means they got unexpected results, they got very good deals from different companies. So that indicates the effectiveness of the presentation, that it was effective or not, the output, the desired results. What is the desired result of the presentation? That is very very important. ठीक है, जो रिजल्ट चाहिए, जो आप चाहते हैं, वो अगर उसमें हासिल हो जाता है तो इसका मतलब है प्रेजेंटेशन इफेक्टिव थी. As we are going to review a book, so your result is what? That people should start reading that book. So if you are reviewing a book and you have delivered your presentation and book review, so definitely people, if people will start reading, so it means that you have produced a desired result. And if people will not start reading, if that, then it means that it is not effective. So effective presentations need something more, means for effective presentations you have to control your anxiety, so don't fight it. Your presentation must be audience centered. It must uh, it must be interesting, and it must accomplish the desired objectives. It should be fun for audience. It should be fun for you, means it should be a source of entertainment for you, a source of entertainment for them. It must be interesting. If it is interesting, then definitely it will be a fun. And it must be conducted within time frame. Means if you are conducting your presentation in in more than the given time, then it will lose that element, the element of fun, the element of interest. So in all cases, your presentation must be conducted within time frame. Time, if
you are delivering your presentation and taking too much extra time. So what will happen? People will start getting bored. People will start sleeping. You will lose interest of your audience. So in all cases, that your presentation will be no more effective. You will lose the main objective of the presentation. So why do we give a presentation? There are certain purposes, and if we talk about purpose of presentation, then there are three major purposes that we can see here in this slide. The first one is to inform, to persuade, to educate. How to inform? Inform means a head of a government, he wants a presentation, he wants a briefing on any ministry, so he visits there, and a presentation is delivered to him regarding the progress of the ministry, regarding their uh, um, role and task, regarding their objectives. So basically, he is being informed that what that ministry functions. Persuade is what, when somebody is selling his product, when any organization is selling its product, so they write they they deliver presentations to persuade the clients, to persuade the companies. And to educate, when you are given a topic in your class, and there you are provided with topics, and you have to educate, you have to give the information to your classmates. Like if being a teacher, I am delivering my presentations, lecture slides, they are also basically presentations. So sometimes you can also find some problems here, but if you are there to educate, especially in the form of presentation, then you have to look for the colors, you have to look for the size and font, you have to look for all these things. Although in this presentation I'm not following all these things, because I've already recorded 2 lectures on it, and I'm sure that you have watched those lectures and you've got a very clear idea about presentation skills. So let's go towards the effective presentations. As a presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations, such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team. So you need to plan, prepare, practice, and present. You have to follow these 4 steps. First, you have to plan that what you are going to deliver, means you have to set your objectives. Um, you have to find then after that, after setting the objectives, now you have to prepare the design material, what you can add. You have to make your outline, you have to make your write-up, because you cannot write the things directly. You cannot write the things directly in the presentation. First you have to make an outline in the form of write-up, and after having a detailed review of your write-up, you will make your presentations. ठीक है, पहले कुछ लिखा हुआ आपके पास होगा, तो उसके उसी की बेस पे ही आप जो है ना वो करेंगे. उसी की बेस पे, वो राइट अप की बेस पे ही आप अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे. राइट अप की बेस पे ही आप अपना प्लान सेट करें, कौन सी चीज़ में ऐड की जाए, कौन सी ना ऐड की जाए. So after let's talk about now the first stage is planning, that you have to get the material from your sources, from different sources. You have to make plan. So for planning, you have to look for these questions. Who is your audience? Who is going to listen to you? You have to look for these questions. You have to be mindful of this, that why are they there, and what is your objective, how long will be your presentation, and where will it take place.
means you must be sure whether it is taking place in classroom, whether it is taking place in auditorium, whether it is taking place in conference room, where it is taking place, whether it is taking place in a ground, in public. So you must be aware about these things, because according to that you will be prepared. ये पहले से आपको पता होगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको जगह का नहीं पता, आप जगह ढूंढते फिरेंगे. Then comes preparation. So for preparation, you have to keep in mind while preparing the structure of your presentation. Prompt means how you have to start. Visual aids, desired visual aids, then voice, your own voice, that what will be your tone, what will be the volume of your voice. Then your appearance means your dress, your style, and the questions, if you are going to ask questions to somebody. So let's talk about the first one, that is structure. So when you will be writing, as before, as during planning, you have set your plans, and when you will be writing your presentations, so you have to be very careful. You have to start your presentation like this. First, you have to tell your objectives, means what is the sequence, what is the objective of your presentation, what do you want to say in this one, what do you want to say in this presentation. Then comes beginning. ऑब्जेक्टिव या सीक्वेंस एक ही चीज़ होती है, ठीक है, कि आज की प्रेजेंटेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है. You can say that when I start my lectures, I say that after desired learning objectives, I've added one slide in every lecture, although in your case I don't have, but usually I add this slide, that after this presentation you will be able to understand, you will be able to learn, you will be able to do, you will be able to know. So they are objectives basically. So in this case, when you are preparing your presentation, you have to look for objectives, that what are your objectives, what are your plans, what you will be talking. Means signposting, basically that is like signposting, that first I'll introduce my topic, then I'll be discussing the summary, after that I'll be talking about critical perspectives, in the end I'll be discussing this. In recorded slides, I've already shared, I've already discussed that signposting, so you can look at that also. So after objectives, then introduction, then main content, then summary, conclusion, and then recommendations and questions. So this is like this, basically this is the format, this is the structure. But what you have to do, you have to say like this. In the objectives, you have to say that first at the beginning I'll introduce my book, I'll introduce the writer and the book. Then after that you will say that then I'll be talking about summary, after that I'll be discussing conclusion, and afterward we'll be discussing recommendations, and in the end there will be questions and answers session. So you can do like this, ठीक है. आपने सबसे पहले शुरू में इस ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड में ये बातें कर देनी, सीक्वेंस या ऑब्जेक्टिव की आ की, that the objective of my presentation is this, and we'll be discussing the things like these. So this is like that introduction that will help you to grab the attention of the audience. Then main theme. So relevant content should be, so your content should be relevant. Then summary, then means that you have to give the key message. So prompt. What is prompt? As I have discussed here, structure prompt. So what is prompt? Short bullet points, keywords only. Put your entire prompt onto your PowerPoint. These prompts are for you. Prompts are what? आपने जब प्रेजेंटेशन लिखनी होती है तो आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, नहीं शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स आप लिखते हैं, कीवर्ड सिर्फ लिखते हैं, बाकी डिटेल आपके राइट अप में मौजूद होती हैं, आपके पॉइंट्स की सूरत में मौजूद हो. पॉइंट्स की सूरत में आप प्रेजेंटेशन में लिखते हैं, बाकी सब कुछ राइट अप में होता है, जिसको फिर आप डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है. पॉइंट्स लिखे होते हैं.
So like this, these are prompts. आप ये कह सकते, these are prompts, these are short bullet points, and I'm explaining these prompts to you. So जब आपने इंट्रोड्यूस करना है ना, आई बी डिस्कसिंग इट, कि आप जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को तो क्या करेंगे, मैं वीडियोस आपको 3 दिखाऊंगा मुख्तलिफ, ठीक है. Then we talk about visual aids, that your presentation should have visual aids, and you can see that when I deliver my presentations in communication skills, I've added visual aids over there. जिस तरह बोर्ड के ऊपर चीज़ें आप दिखाते हैं ना, इसी तरह आप विजुअल एड्स, सिंपल फॉन्ट्स हो, कलर्स एंड ग्राफ्स. So you can use images and clip art. 3 to 7, there should be 3 to 7 bullets per slide. Don't overcrowd your slides, it will not look professional. Newer or different visual aids wake people up. Means एक ही स्लाइड पे बहुत सी तस्वीरें ना लगाएं, यानी कि ऐसे हो जी वो ढेर लगाओ तस्वीरों का, 1 2 3 4 5 6, नो, लिमिटेड तस्वीरें, दो तस्वीरें, दैट्स इनफ, ठीक है, 2 पिक्चर्स. और इवन देन जब आप ऐड करें, दे मस्ट बी रेलेवेंट. Do not add any irrelevant picture. Do not add any irrelevant any irrelevant visual aids. ठीक है, किसी किस्म के ऐसे irrelevant chart वो नहीं डालने. If we are talking about a book review, in that case, we can add book cover, we can add the picture of the writer, and if we find any type of pictures regarding that, if that is a novel or a drama, a book on drama, or you have got any pictures, any charts, any graphs to show, they are which are available there, so you can add them. You can add those things. ठीक है, हालात के हिसाब से डिपेंड करता है. आप अपनी किताब के राइटर की तस्वीर लगा सकते हैं, बुक का कवर लगा सकते हैं, बुक के अंदर अगर आपने उस बुक से रिलेटेड मूवी देखी है, उसके अंदर कोई तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, आप उनको लगा सकते हैं, टू गिव सम कलर्स टू योर प्रेजेंटेशंस. देन वॉइस, that you must be louder and clearer than your normal pitch. Vary pitch and volume over emphasis. So it should not be like this, louder and clearer than your normal pitch, vary pitch and volume over emphasis. No, don't do like this. Your voice should vary. ठीक है, आपकी आवाज़ जो है उसके अंदर वेरिएशंस हों, आप उसको उस तरह बोलें, पता चले. इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड नॉट बी मोनोटनस. मोनोटनी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. देन इज़ योर अपीयरेंस when you're going for presentation. So dark colors read a business like. You have to wear comfortable shoes to weight your feet evenly. Allow yourself to move a bit. Look confident. तो आपने उसके अंदर इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है प्रेजेंटेशन के लिए. यू कैन सी देयर दैट फॉर्मल ड्रेस पहन के, नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है. फॉर्मेलिटीज़ मीन्स आपने फॉलो करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग इन अ मैरिज सेरेमनी, आप कभी भी घर के कपड़े नहीं पहन के जाते. ख़वातीन के लिए तो बड़े मसले होते हैं, स्कूल के लिए और होता है, कॉलेज के लिए और होता है, यूनिवर्सिटी के लिए और होता है, बाज़ार के लिए और होता है, घर के लिए और होता है, मदरसे के लिए, और हर काम के लिए अपने अपने सूट्स होते हैं. बॉयज़ को मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, उन बेचारों के पास एक ही जोड़ा होता है, वही रात को भी पहन के सोते हैं, वही दिन को चला रहे होते हैं. So I tell them that when you are going to deliver presentation, so you must be suited, booted, wear comfortable shoes. So wear these dark colors, they look a business like. ठीक है, उस तरह का लिबास भी आपका वैसा हो, प्रोफेशनल लिबास हो. शलवार कमीज़ पहनी है तो वेस्ट कोट और नीचे बूट पहन के जाएं. अगर पैंट शर्ट पहनी है तो टाई भी बांधी हो, ठीक है, और वो भी सारा कुछ मैचिंग में हो. ये नहीं है जी
नीचे वाइट कलर के शूज़ पहने हुए या जॉगर्स पहने हुए हैं और ऊपर जनाब आपने शलवार कमीज़ पहन के नीचे जॉगर्स पहन के आ जाएं, वेस्ट कोट एंड जॉगर्स नो, ठीक है। जॉगर्स आर फॉर द स्पोर्ट्स। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, यहीं पे अपीयरेंस की मिसाल देता हूँ। ग्राउंड के अंदर आप देखें ना खिलाड़ी को, तो उसने जो ड्रेस पहना तो सारे का सारा स्पोर्ट्स का ड्रेस होता है। ये नहीं होता कि नीचे उसने फॉर्मल शूज़ पहने हों या लोफर्स पहने हों या उसने चप्पल पहने हों, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जब वो जा रहे होते हैं यहाँ से, वही टीम यहाँ पाकिस्तान से जा रहे थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान के कलर में उन्होंने 3 पीस पहना हुआ होता है, कोट पैंट पहना होता है, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ड्रेस होता है वो पहन के वो जा रहे होते हैं। ओलंपिक्स पे जा रहे होते हैं तो उस तरह वही ड्रेस पहना होता है। सो ओकेजन के मुताबिक आपने ड्रेस पहनना है। एंड डोंट बादर दीज थिंग्स। आई एम श्योर वाइल स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, you have experienced people delivering lectures in the university, visiting classes, attending classes, delivering lectures, and they come in informal dresses. But when you come for your presentation, be careful of your all the formalities. So फॉर्मल ड्रेस पहन के ना, फॉर्मल ड्रेस ये वाला होता है। वहाँ शायद मैंने लफ्ज़ इनफॉर्मल यूज़ किया, बात थोड़ा सा मैं शायद वो स्लिप, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग एंड आई हैव केप्ट ऑन रिपीटिंग इन दैट रिकॉर्डिंग। फॉर्मल ड्रेस ये होता है कि आप किसी तकरीब के हिसाब से पहन के जाते हैं। शादी पे जा रहे हैं तो कैसा पहनेंगे, गमी पे जा रहे हैं तो कैसा पहनेंगे, ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने के लिए तो क्या पहनेंगे। कोट पैंट पहन के आप ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाते। सो योर अपीयरेंस शुड बी लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। सो फॉर प्रेजेंटेशन आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी में मैं एक और बात आपको बताऊं दैट प्लीज़ यू मस्ट चेक इट वेदर योर शूज़ आर कंफर्टेबल और नॉट, ठीक है। यू मस्ट चेक योर पैंट शर्ट्स, योर शूज़। मैं इन चीज़ों की क्यों बात कर रहा हूँ अपीयरेंस की, मैं इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको अभी बताने लगा हूँ। आपने लंडे से, आपने वो सेल में से शूज़ ख़रीदे और आप वो शूज़ पहन के यूनिवर्सिटी आ गए प्रेजेंटेशन के लिए। आए किस तरह, घर से आपका 5 मिनट का 7 मिनट का पैदल रास्ता था, वो पैदल रास्ता आपने गुजारा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में भी आपका काफ़ी सारा पैदल रास्ता था। वो जनाब पता चला कि वो शूज़ थे सेल के, सस्ते से जूते थे, कोई ब्रांड नहीं था, सेल के शूज़ थे, वो चलते चलते ही टूट गए, या उन्होंने आपको इतना कंफर्टेबल किया कि आपके पाँव दुखना शुरू हो गए। अच्छा, पैंट की स्टिचिंग करवाई, जिस टेलर से करवाई उसने आपके साथ कोई ड्रामा कर दिया। मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, कि वो नीचे से जो उसका पांचा होता है वही खुल गया बाहर। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर अपीयरेंस। इसका आपने ख़ुद ख्याल रखना है कि अपना ड्रेस आपने पहले चेक करना है कि आप जो कुछ पहन के जा रहे हो उसका मसला तो कोई नहीं है, साफ़ सुथरा हो, ठीक है, ठीक हो, गंदा ना हो। Okay, so you can look here, the professional dress codes. Shirts should always have collars, ठीक है, कॉलर के बगैर नहीं होनी चाहिए। A solid color is recommended. They should be long sleeved even in summer. Long sleeved even in summer. Tie should coordinate with the color of your shirt. उसके साथ coordinate, contrast में होनी चाहिए। A small conservative pattern is okay, but remember no character or novelty ties, ठीक है, नोवेल्टी वाली टाइज नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज वियर अ बेल्ट, बेल्ट के बगैर नहीं जाना। ऑल्सो कीप योर लैपटॉप एंड पेपर्स इन अ बैग दैट्स एज पॉलिश्ड एज द रेस्ट ऑफ योर इंज्यूमेबल। आप अपने बैग के अंदर रखेंगे अपने कागज़ वगैरह, अपनी चीज़ें वगैरह, और वो भी साफ़ सुथरा हो। बेल्ट है तो वो बिल्कुल पॉलिश्ड हो, साफ़ सुथरा बेल्ट हो। बैग भी साफ़ सुथरा, गंदा बैग उठा के आ रहे हैं पुराना सा, नो। फॉर कलर्स थिंक द शेड्स ऑफ ब्राउन, बीज, ऑलिव और ग्रे। लीव द जीन्स एट होम, जीन्स नहीं पहन के नहीं। सॉक कलर शुड मैच पैंट्स एंड शूज़। माइंड इट कि आपकी पैंट और आपके शूज़ का जो कलर है उसी के अकॉर्डिंगली सॉक्स में हो। नीचे ब्राउन पैंट और काले बूट पहन के आ जाएं, नो,
ब्राउन पैंट है तो शूज़ भी ब्राउन, सॉक्स भी ब्राउन। ब्लैक पैंट है तो ब्लैक शूज़, ब्लैक वो। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने रोज़ रोज़ नहीं देनी होती, बट प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो यू कैन सी हियर प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल्स हाउ दे आर लुकिंग, कैसे नज़र आ रहे हैं प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे नज़र आते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा? एनीबॉडी wants to share his or her experience, her idea about it, professional versus non-professional, कैसे लगते हैं प्रोफेशनल? पता चलता है ना, दे आर हेयर टू प्रेजेंट समथिंग। नॉन प्रोफेशनल ऐसे लगता है कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इवन आपने अपने पास भी एक्सपीरियंस किया होगा, यूनिवर्सिटी में आप आते हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे, दे कम फॉर द क्लासेस एंड दे कम इन नॉन प्रोफेशनल ड्रेस, एंड देर आर सम टीचर्स जो बड़ा पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेसेस में आते हैं। So you have to follow those teachers, those who come in professional dresses, not non-professional. ठीक है? Even when you are working in any organization and when you are working in and some people are working under your control, so you have to be professional. तो फिर आपने इसी तरह का ड्रेस पहनना, रूटीन में आपको पहनना होगा। ये नहीं है बस ठीक है जैसा आया उठा के मुंह उठा के निकल आया, बस ठीक है वो मुंह धोया और निकल आया। वही जीन्स की पैंट है, वही जनाब 5-6 पैंटें लेकर रखी लंडे से, बाल्टी के अंदर रख दी, तो बदल बदल के वो पहनते गए। बदल बदल के पहनने से बेहतर है कि आप प्रोफेशनल ड्रेस में साफ सुथरा हो, एक ही ड्रेस हो। ओके, देन इज स्टाइल, दैट यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, किसी और को कॉपी नहीं करना। सो यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू यूज इन नॉर्मल डेज, बी योरसेल्फ, किसी की नकल नहीं करनी, ठीक है। And after that, you have to sketch an idea that what kind of questions audience may ask. You have to be ready for the expected questions. They can ask different type of questions. ठीक है, उसके लिए आप तैयार हो। अब उसके लिए when you are preparing for your presentation, तो उस वक्त ही आप सोचें यार ये क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं। So be watchful, be careful कि क्या पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से आप तैयार होके जाएं। So in the preparation stage, it starts from here to there, that from you to audience, first the idea, then improved idea, then story design, then visual concept, graphics, execution, delivery, coaching and execution, and then audience. ये presentation का पूरा फेज है कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, आइडिया क्या था, फिर इसको इम्प्रूव किया, फिर आपने अपनी स्टोरी डिज़ाइन किया, क्या बोलेंगे, विजुअल कॉन्सेप्ट्स आपने क्या ऐड किए, ग्राफिक्स कौन से ऐड किए, फिर आपने प्रैक्टिस की, रिहर्सल की उसके ऊपर, उसके बाद आपने ऑडियंस पे उसको प्रेजेंट किया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, बिफोर दैट, ठीक है, बिफोर दैट आपने रिहर्सल ज़रूर करनी है कि if your presentation is expected to be of 10 minutes, if you're asked to prepare your presentation for 10 minutes, so do rehearse कि क्या ये 10 minutes में complete होती है। So it should end in 8 minutes because sometimes there are certain unforeseen situations, so you have to look for the time। जिस तरह पेपर लिखने के दौरान you have to look for word count, so here you have to look for time count, ठीक है। Your presentation should not exceed the time limit, it should end within the time limits, within 9 to 10 minutes. If you're given that time 10 minutes, so when your 9 minutes starts, it means that you're winding up your discussion and now you are leaving the audience to ask questions. Then is preparation of material, that how you have to prepare. You can use following items to make the content of your presentation, like handouts, personal notes, internet and visual aids. यहाँ से आप चीज़ें उठाते हैं, विजुअल एड्स आप लेके जा सकते हैं, पर्सनल नोट्स होते हैं आपके पास, हैंड आउट्स होते हैं। यू कैन यूटिलाइज दीज थिंग्स, यू कैन गिव योर हैंड आउट्स टू द ऑडियंस। अच्छा, बी रेडी फॉर द अनफोर्स सिचुएशंस, लाइट नहीं है या लैप या मल्टीमीडिया काम नहीं कर रहा, मल्टीमीडिया नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें पहले ऑलरेडी उन 2 प्रेजेंटेशंस में बताई हुई हैं। कॉन्टीजेंसी प्लान्स आपके पास होने चाहिए। बिजली नहीं है तो आप क्या करेंगे,
मल्टीमीडिया काम नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, आपका लैपटॉप फेल होगा क्या करेंगे, विदाउट मल्टीमीडिया देनी पड़ गई तो क्या करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, उसके हिसाब से आप अपना प्लान भी साथ लेके जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। नो वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस। As practice makes man perfect, so you have to rehearse all your points what you are prepared. Rehearse with all visual aids and handouts. Practice again and again to manage time. Rehearse in front of mirror or a friend. ठीक है, किसी दोस्त के सामने, शीशे के सामने करें, बट बार बार करेंगे, शीशे के सामने करेंगे, बार बार करेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। Because when you will do rehearsal, I'm sure that you'll be performing well in front of public. If you will not rehearse, you'll not be performing well. ठीक है, बस वही उठा के शुरू करके आगे तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। This is now the way that you have to present. Don't stand in front of the slide. अब यहाँ पे भाई खड़े हैं, so look here, he is explaining this one. सो डायरेक्टली ये नहीं कि इधर खड़ा होकर एक्सप्लेन करें, साइड पे खड़ा होकर कर रहा है। फॉर प्रेजेंटेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, यू हैव टू एंगेज द ऑडियंस इन फर्स्ट 2-3 मिनट्स, शो योर पैशन थ्रू योर मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स। आपकी हरकत और सकनात से उनको पता चले यू आर एन एनर्जेटिक प्रेजेंटर। मस्ट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रिम। कितना भी मुश्किल हो, कितना ही मतलब ग्रिम मीन्स बेशक दुखों दर्दों से भरा हो, जब आप स्टार्ट लेंगे उसका तरीक़ाकार ये कि आप रोस्टम पे आएँ, 2 लंबे लंबे सांस लें, उसके बाद मुस्कराएं, उसके बाद आप स्टार्ट लें। और देयर शुड बी एनर्जी इन योर स्पीच, देयर शुड बी एनर्जी। ये ना लगे कि बस थका हुआ है, बोर कर रहा है, नो, उसके अंदर कोई ताकत नज़र आनी चाहिए। जब आपकी वॉइस के अंदर एनर्जी होगी तो डेफिनेटली ऑडियंस भी अट्रैक्टिव होगा। Speaker's impact. This is research where it was highlighted that text leaves 7% in impact, vocal leaves 38%, whereas visual leaves 55%. So that is why I ask you to prepare visual aids. That visual leaves great impact on audience. ठीक है, जितनी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स आप ढूंढें, क्लिप आर्ट में ढूंढें, इमेज में जाएं, क्लिप आर्ट में एक लफ्ज़ के बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मिसाल के तौर पे इवन ये लफ्ज़ भी है ना, इसका भी आपको क्लिप आर्ट मिल जाता है। सो क्लिप आर्ट जो मिलते हैं उसका एक बड़ा असर होता है। एंड व्हेन वी फाइंड फ्लॉज इन प्रेजेंटेशन, सो इट विल बी लाइक दिस। ये सिचुएशन होगी, लोग जो वो सारे नीचे करके सोए हुए होंगे और क्या कहते हैं, या एक भाई ने सर पे हाथ रखा होगा, वक्ता पड़ा हुआ है कब ये ख़त्म होगी तकरीर और हम बस करेंगे, कब सामिया ने तकरीर ख़त्म करनी है कि ये लोग बस करें। सो बोर नहीं करना बंदों को। When there are flaws in presentation, so what happens? Due to lack of experience, ठीक है, flaws tell us that there was a lack of experience, lack of enthusiasm, lack of practice, lack of related material, lack of confidence, there was a hesitation, and ultimately there was an ambiguity in the result that you wanted to conclude. जो आप बताना चाह रहे थे उसमें मसला था। So ये सारी चीज़ें equally contribute करती हैं presentation के अंदर। So there are certain factors for successful presentation too हो जाते हैं। So this is the major factor of successful presentation. People are smiling and you will receive applaud. ठीक है? So for that, be over prepared when you are going to deliver a successful presentation. So be over prepared, rehearse and practice, grip on your topic, know your subject, be positive and avoid stress. Be over prepared means that rehearse, research a lot, study a lot, make your each and every point very very clear. Then rehearse and practice. ठीक है, पहले आप जिस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर सब जितना मुमकिन हो सकता है उतना मटेरियल इकट्ठा करें,
फिर उस पर रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर बार बार, फिर अपने टॉपिक पे इसी तरह आपकी ग्रिप होगी। उसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। मुस्बत अंदाज से मैदान में उतरना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। मैं यहाँ पे इसकी एक बात मिसाल देता हूँ कि दोज पीपल हु वांट टू दोज हु आर इन पब्लिक स्पीकर्स स्पेशली, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं होता कि वो जाके तकरीर जो फ़ौरन वो लिख लेते हैं और वो सारा कुछ करते नहीं। उन्होंने चंद पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे हम कहते हैं वो फलाना पर्ची से पढ़ता है, फलाना पर्ची से पढ़ता है। वो जो पर्ची से पढ़ते हैं वो ये पॉइंट्स ही होते हैं बेसिकली। उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, किसी ख़ास मौके की मुनासबत से अपने पॉइंट्स लिखे होते हैं जिन पे उन्होंने बोलना होता है, तो वो एक तरतीब से करके उनको रखते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग उस तरह बात करते हैं, जिनके पास पॉइंट्स होते हैं, पर्ची होती है, उनकी बात में भी एक कोहेरेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, और एक एक चीज़ पे वो जवाब दे होते हैं, और वहाँ वो कहीं पे भी उनको कोई बंदा लाजवाब नहीं करता। जबकि जो बग़ैर पर्ची के पढ़ते हैं वो कभी वो ज़मीन पे खड़े था, कभी आसमान पे, कभी मरी में, कभी इस्लामाबाद में, कभी पिंडी में, कभी मुल्तान में, यानी उनकी बातों का न सर होता है न पैर होता है। सो दीज पॉइंट्स आर बेसिकली बुलेट्स। ये इसी तरह जिस तरह आप अपने बुलेट्स बनाते हैं और वन बाय वन एक ऑर्डर में आप उनको बताते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। किसी चीज़ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात करनी है, पहले वो तैयारी करते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं, उससे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पब्लिक को बताना है। सो ऐसा नहीं होता मुंह उठा के बात कर दी, नो। सो व्हेन यू now we are going to conclude it that always prepare, channelize your fear and interact with your audience। ठीक है, ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करना है, अपने फियर्स को चैनलाइज करना है। यहाँ पे भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी फॉर दैट रिलेटेड टू प्रेजेंट। सर, जी जी बोलिए। हम लोग जब बुक रिव्यू करते हैं तो बुक रिव्यू में आपने कहा ना कि बी पॉजिटिव, वो जितना इंफॉर्मेशन निकल सकती है निकाले, गैदर करें कहीं से भी। तो जब हम बुक रिव्यू लिखते हैं, सपोज एक पॉइंट जो है वहां पे कन्फ्लिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमने पहले एक बुक सेलेक्ट की थी, उसमें ये इशू आ रहा था कि फिरका वारियत काफी ज्यादा थी, तो अब वो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगी। नहीं तो आप हालांकि ना देखें मेरी बात सुन। आप उसी किताब को रखते, उसको आप रिव्यू करते। देखें, रिव्यू में ज़रूरी नहीं होता कि आपने बंदे को कहना है कि ये किताब पढ़ो, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये किताब मत पढ़ो, हमने इसको पढ़ा, इसमें क्या गंद है। आप उसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा बताते हैं कि इसमें, देखें, आपने अपने ऑडियंस को कन्विंस करना अपने पॉइंट पे कि वो इसको पढ़े या ना पढ़े। अगर वो पढ़े तो फिर आपने पढ़े की बात बतानी कि उसको वो क्यों पढ़े, अगर ना पढ़े तो क्यों ना पढ़े। ओके सर, एक होता है ना बुक के वॉल्यूम्स भी आते हैं कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एडिशन 1, एडिशन 2, एक ही यस। राइटर की। हाँ तो जी। अब हमने एक बुक सेलेक्ट की है, उसके 2 एडिशंस हैं, तो हमने एडिशन, बुक रिव्यू करनी देखिए, है, नहीं, तो सुने अब सुने बुक्स तो सुने 2 होती हैं। सुने, एक होता है एडिशन, एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो एक ही किताब की एक्सटेंशंस होती हैं। एडिशन जो है वो उसी किताब वो वॉल्यूम इस तरह होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे वॉल्यूम 1, 2, 3। एडिशन में होता है कि फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। एडिशन में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, किताब वही होती है। वॉल्यूम में ये होता है कि पहले वॉल्यूम में उससे अगर 8 चैप्टर डिस्कस किए हैं तो अगले में अगले 8 होंगे, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन सेम नहीं हो सकती। वॉल्यूम के अंदर इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती, वो बेसिकली दूसरे अल्फाज में उसी किताब का हिस्सा होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जो एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर एक किताब 20 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है तो आपने उसको 4 चैप्टर का एक हिस्सा किया, 4 का दूसरा, 5 हिस्से कर दिए तो 5 वॉल्यूम बन गए। लेकिन वही किताब अगर आपने आज एक 1992 में पब्लिश हुई, एक सन 2000 में पब्लिश हुई किताब वही है, सिर्फ उसका एडिशन चेंज हुआ, उसके अंदर चेंजेस आएंगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। वॉल्यूम जो है वो और चीज़ होती है, एडिशन और होता है। आपने जो भी एडिशन देखा आप उसी एडिशन पे बात करें। आगे बोलिए। सर सपोज कि एक हमने, अब जिस तरह वॉल्यूम आपने कहा ना कि वॉल्यूम चैप्टर्स होते हैं, तो एक हमने बुक लिया, उसके डिफरेंट वॉल्यूम्स पे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यस, आप किसी पे बना सकते हैं। बेहतर है, देखें, इतने वॉल्यूम वाली किताब ही ना उठाएं, आप एक सिंगल वाली उठाएं बस, ताकि कम से कम आपको परेशानी हो। और सर अभी जिस तरह हमने ये प्रेजेंटेशन पढ़ी है, मतलब पूरी ये प्रेजेंटेशन स्किल,
ये सारी तो फिजिकल प्रेजेंटेशन है। तो अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन तो काफी डिफरेंट हो जाती है, तो उसको हम कैसे इफेक्टिव कर सके हैं, अभी मतलब अभी उसी पे बात करूँगा, थोड़ी देर तक उसी पे बात करूँगा। वो चीज़ें जो मैं बताऊँगा मैं बार बार नहीं बताऊँगा, काइंडली प्लीज़ अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लोग उस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, उससे पहले हम वो चूँकि लास्ट टॉपिक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज़ करता हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग इसको मैं स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे इस पे बात कर दूँगा। ओके। जो आपने जो लाइव प्रेजेंटेशन देखी हैं वीडियोस के अंदर, वहाँ पे जो हुआ, जो भी बातें हुई, यू कैन सी इट that how he delivered his presentations and how he followed these things. I've shared the links with you. You can watch these presentations to find out weak links in your presentation if you are delivering it in public. ठीक है? As you will be delivering your presentation online, तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी नई चीज़ करनी पड़ेगी जिससे सारे लोग जो वो मैनेज किए जा सकें. There are certain ground realities that we have to look for. For example, there is a there is a problem with your network. There is a problem with your you can say with your background. घर में शोर शराबा चल रहा है, joint family system है, isolation, क्लास के टाइम पे isolation नहीं मिलती, तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट विल वी डू? अभी आप एक एक बात को नोट कीजिए, बार बार इसको नहीं बताऊंगा, प्लीज़ नोट करें. Your presentation will be composed of three things. The first will be your PowerPoint presentation. As I told you कि आपने उससे पहले आउटलाइनिंग करनी है, प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है. जिस तरह आप अपना मटेरियल बनाएंगे, जितना आप मटेरियल बनाएंगे, वो सारे का सारा आप MS वर्ड फॉर्मेट में बुक रिव्यू के नाम से वो लिखेंगे. वो रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है. वो ज़्यादा से ज़्यादा, इनमें वर्ड लिमिट इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा जितना भी हो कोई मसला नहीं है, बट वो राइट अप जो है वो आपका, जिसको हम बुक रिव्यू का नाम भी दे सकते हैं या राइट अप कह सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो वो 3000 अल्फाज का. लेस जितना भी हो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 वर्ड्स का होना चाहिए. एक बात तो ये हुई, वो होगा आपके MS वर्ड की शीट. दूसरी शीट होगी आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलेंगे. इसके अंदर मैंने एक रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की कि आप अपने अपने हिस्से की चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे. वहाँ पे जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट लिखे, सीधा प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, पॉइंट्स यानी कि आप पॉइंट्स में चीज़ें बताएंगे, बाकी आपके राइटअप में सब कुछ है, तो आप चीज़ों को बोलेंगे. अपनी स्लाइड आपके सामने होगी और उसके हिसाब से आप बोलेंगे. अब उसमें दो ऑप्शंस हैं. अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं देन दैट्स गुड, स्क्रीन रिकॉर्ड करें, वीडियो बना के दे दें. अगर स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड करते तो आप उसको सिंपली इस तरह करें, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें, स्लाइड नंबर आपका लिखा हो स्लाइड्स के ऊपर, आप बताएं स्लाइड नंबर कितना, जो है ना कितने पे आप बोल रहे हैं, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें और ग्रुप लीडर को भिजवा दें. ग्रुप लीडर जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ नाम लिखेगा, ये किसकी है, उसका एरिड नंबर और उसका नाम लिखेगा, और वो पूरा फोल्डर एक बनाएगा, गूगल ड्राइव पे शेयर कर दे, या मुझे डायरेक्ट अगर शेयर कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना गूगल ड्राइव पे, अपनी गूगल ड्राइव पे शेयर करें, मुझे उसका लिंक देना, मैं उसको देख लूँगा. ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये तरीक़ाकार होगा जिसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे, वॉइस में रिकॉर्ड करके आप अपना मटेरियल मेरे साथ शेयर कर देंगे. क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो में जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए मसला होगा. अभी आप काम अपना स्टार्ट कर लें. उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन है, एक वीक हमारा प्रेजेंटेशंस का होगा जिसके अंदर सिर्फ ग्रुप लीडर्स प्रेजेंटेशन देंगे. आप अपना अपना जो आर मेंबर का हिस्सा है ना, वो है 5 मिनट्स मैक्सिमम. आप अपनी वॉइस में जो रिकॉर्ड करेंगे वो 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. और ग्रुप लीडर उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन ऑनलाइन वो प्रेजेंटेशन भी डिलीवर करेगा. जिस तरह हम स्क्रीन शेयरिंग, उस दिन वो स्क्रीन शेयर करेगा, वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक समरी पेश कर देगा कि हमने क्या क्या किया, अपने ग्रुप के बारे में सारी डिटेल बता देगा, कौन कौन मेरे साथ था, हमने क्या क्या किया, पूरी समरी पेश कर देगा. ठीक है, प्रेजेंटेशन सामने होगी, वो तेज़ तेज़ चलता जाएगा, वो मैक्सिमम 10 मिनट में उसने अपना काम ख़त्म करना है, नॉट मोर दैन 10 मिनट्स. ठीक है, यानी कि आप सेपरेटली कंट्रीब्यूट बेशक ना करें,
आप अपनी रिकॉर्डिंग कर दें, सही है। एक ग्रुप मेंबर जो है ना वो उस दिन प्रेजेंट करे, बाकी ना बेशक करें। अभी बातें क्लियर हो गई हैं या अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? आज कोई सर रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? व्हाट्सएप आप मैसेज कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती? लैपटॉप पे सामने रखें, व्हाट्सएप पे उसको रिकॉर्ड करें, सीआर को उसको शेयर कर दें, या आप लैपटॉप के अंदर भी अपना रिकॉर्डर होता है वहाँ पे रिकॉर्ड करें, एक दो दफ़ा उसको सुन लें, प्रैक्टिस करें पहले भाई क्या लिखा क्या किया है। उसमें ये होता है ना, प्रैक्टिस भी होती है, आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी गलतियों को कवर भी कर सकते हैं ना। एक दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यार ये आवाज़ मेरी एक जैसी मोनोटनस है, इसको चेंज करते हैं। दूसरी दफ़ा 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो वो चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी, ठीक है। सर पावर पॉइंट से जो डायरेक्टली रिकॉर्ड होता है सर, वहां से भी कर सकते हैं? वहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है ना कि पावर पॉइंट पे डायरेक्टली रिकॉर्ड करके फिर आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करके मुझे भेजेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो चलानी है, ठीक है। तो सर। लेकिन याद रखिएगा उसमें जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसका जो हुज्जम है ना वो ज़्यादा हो जाएगा आपकी फ़ाइल का। तो इसलिए मैंने कहा कि आप डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्ड करें। स्लाइड इस तरह चल रही हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग आई एम स्लाइड नंबर 12, आई एम एट स्लाइड नंबर 13, आई एम स्लाइड नंबर 14, आई एम एट स्लाइड नंबर 15। तो उस तरह आप बोलते जाएं। आप बंदा आए, इंट्रोड्यूस करें कि आई एम, फॉर एग्जांपल आई एम आयशा फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। जो आपका हिस्सा होगा उसके ऊपर आप बात करते हुए आगे चलते जाएंगे, ठीक है। सर ऑडियो रिकॉर्ड दे आपको, वीडियो ना हो? हाँ ऑडियो रिकॉर्ड दे दें, हाँ ऑडियो रिकॉर्ड दे दें, प्रेजेंटेशन साथ और साथ आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो हर बंदे की अपनी। बट it must be in English and it must be in English language. It should not be like just like monotonous reading, ठीक है। monotonous reading नहीं चलेगी, इंग्लिश में होगी और लगे इस तरह कि आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। ये नहीं होगा कि ऐसे ना पता चले कि आप खबरें पढ़ रहे हैं या आप कोई क्लास में कोई पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। यस सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? ये जो वर्ड लिमिट आपने बताई है 3000, वो टोटल पूरी प्रेजेंटेशन की 3000 में होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बुक है 1200 पेजेस की तो उसको 3000 नहीं वर्ड्स नहीं में लाना तो नहीं, मुश्किल है। सुने, मैं ये कह रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशंस में आपके पॉइंट्स होते हैं जो आपने डिस्कस करने होते हैं। जो आपका राइट अप है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 वर्ड्स का हो। राइट अप का मतलब होता है कि आपने क्या बोलना है, क्या बताना है, वो उसमें आपने अपने डिटेल पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये बातें बतानी है, ये पॉइंट लिखा है इसमें ये बतानी है, ये पॉइंट लिखा था ये बतानी थी, ये पॉइंट लिखा है ये बतानी है, दैट इज़ राइट अप, ठीक है। तो वो बेसिकली दूसरे अल्फाज में वो रिव्यू ही होगा वो। सर जी 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 बोलिए। वन से सर आपने कहा कि हर मेंबर ने 5 मिनट बोल। हाँ 5 मिनट बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। और वो जो राइट अप है ना वो 2 से 3 पेजेस का हो, बस ये काफ़ी है। मैंने 3000 वर्ड इसलिए कहा कि आप लोग ज़्यादा भी लिख देते हैं, इसलिए कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3000 वर्ड्स तक जाएंगे। मीन्स 3 पेजेस आर मोर देन इनफ। 2 से 3, एक पेज भी हो उसमें वर्ड काउंट नहीं देखा जाएगा, याद रखिएगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि वो होता है प्रेजेंटेशन के साथ, राइट अप मौजूद होना चाहिए, इसलिए आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। असल जो आपकी जजमेंट होगी वो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस करेगी, आपने प्रेजेंटेशन कैसी बनाई और आपने डिलीवर कैसे किया। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सर हम ये करेंगे ना कि अपने बाकी मेंबर्स की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आपको, और जो हमने प्रेजेंटेशन रेडी की होगी वो एज अ होल ग्रुप लीडर पूरी उसको प्रेजेंट करेगा। जी जी ठीक है सर, बिल्कुल इसी थैंक तरह यू। करना है। सर मैंने पूछना था कि जो ग्रुप लीडर होगा वो अपना पार्ट देगा या फिर उसको पूरा बताना पड़ेगा? ग्रुप लीडर अपना पार्ट तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बाकी प्रेजेंटेशन डे वाले दिन वो सारी प्रेजेंटेशन पे बताएगा, एक ओवरव्यू देगा, समरी सी बता देगा बस। ओके सर। हाँ सर पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेगा ना ग्रुप लीडर, सिर्फ एक पॉइंट्स बता देगा कि इस बुक में हमने क्या पढ़ा था।
हाँ वो देखे ना, वो जनरल सारी बात करेगा ना, वो अपनी अपनी जनरल जो भी अपनी प्रेजेंटेशन पे जनरल बात करेगा बस। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो क्वेश्चन सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने वो वीडियो भी दूसरी क्लासेस को दिखाई कि जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना ख़ुद को, जब आप अपना टॉपिक, ख़ासतौर पर जो फर्स्ट बंदा होता है तो वो बताता है ना, एक आप उसमें वो क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं एक एक वो सस्पेंस सा क्रिएट करते हैं। एकदम ऐसे नहीं टॉपिक जी के my name is Najma and I'm going to talk about this topic, my topic of presentation is this is no, it is not like that। जो फर्स्ट जो बंदा होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा प्रेजेंटेशन को, तो वो एक कैची तरीक़ेकार होना चाहिए, ठीक है। वो उसके अंदर हमने देखा भी है, जो बाकी जो प्रेजेंटेशंस आप देखें उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद भी हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद, आप उसको, मैं एक लिंक आपको शेयर करता हूँ, अभी दिखाता भी हूँ बल्कि, सॉरी, ठीक है। सो जस्ट वॉच इट, सी इट के उसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का, तो इसी पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है।